Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for the Newton School, and in this particular video we are going to see a very important task, which is like how we can load test our Django APIs. Because what I think, if you cannot measure, you cannot you cannot improve. So in this particular video we are going to see how we can load test our APIs, because it's a very important part of our software development. Let's suppose you have created an API and simultaneously a lot of heavy users and you can say a lot of heavy traffic comes into the picture. Then how your Django server will respond? So we are also going to see a library called Locus, which is a Python library which helps you to load test your Django server, or you can say any server, like whether it's a Python server, Node.js server, Spring, Java, any kind of server you can test it. So without wasting any time, let's go into the system. And before continuing the video, I have a very important request for you. Please do subscribe my channel, because I wanna post all these awesome content for you. So please help me to gain more subscribers so that I can help you more out. And please share this video, and if you like the video, if you get any information from this video, please subscribe the channel and give it a thumbs up, and please share my video. So let's go to the system and let's start. Okay, let me introduce to the code. So हम कोड में आ चुके हैं, and ये बहुत मिनिमलिस्टिक सा Django REST फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट सेटअप है, एंड इसमें एक API है कॉल्ड कंट्री API, एंड इस पर्टिकुलर API के दो मॉडल्स हैं. लेट मी शो यू. The first one is country, the next one is country people, and we have one field in country called country name and two fields in country people. One is country, which is a foreign key to country, and full name. So okay, and I have already written a function which seeds the data using the faker library. If you want to see, I can show you the data which I have already pre-filled in Django admin, from Django admin. Okay, so let me close this tab, and अब चलते हैं Django admin के admin python manage.py run server. ओके, सो अब हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या हमने डेटा स्टोर किया है. तो ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ कंट्रीज है. आई थिंक 150 प्लस नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, एंड कंट्री पीपल भी यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रीफिल्ड कर लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है, एंड ये नॉर्मल मिनिमलिस्टिक से API है. जब आप इसको हिट करते हो, देन व्हाट इट रिटर्न्स इज इट रिटर्न्स अ कंट्री पीपल एंड अ कंट्री नेम. सो ये पर्टिकुलरली API है, एंड इस API में हम पूरा डेटा एग्जॉस्ट कर रहे हैं. डेटाबेस में अगर 1000 एंट्रीज हैं, वी आर गोइंग टू एग्जॉस्ट ऑल द एंट्रीज. सो अब हम देखते हैं जब हम पूरी एंट्रीज को एग्जॉस्ट करते हैं तो हमारा RPS कितना निकल के आता है. RPS मीन्स रेस्पॉन्स रेट पर सेकेंड. ठीक है, देन लेट्स सी. अभी हमारे पास 145 नंबर ऑफ कंट्रीज हैं. सो 145 नंबर ऑफ कंट्रीज इतना है, एंड लेट्स रन आवर लोकस्ट सर्वर बनाते हैं अपना, जो कि मैंने बताया था कि लोकस सर्वर हम यूज करेंगे टू टेस्ट आवर लोड बैलेंसर. इट्स अ मॉडर्न लोड टेस्टिंग फ्रेमवर्क, एंड इसको यूज करना इट्स वेरी सुपर इजी, एंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है. ठीक है, सो हमने क्या करेंगे, पहले तो हम इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल लोकस करके. दैट आई हैव ऑलरेडी डन. इफ यू वांट यू कैन डू दिस. सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि लोकस्ट फाइल करके locust.py करके. ओके, सो लोकस्ट file.py, एंड यहाँ पे हम कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे लोकस से. सो फ्रॉम लोकस्ट इंपोर्ट करेंगे क्या, दो चीजें. एक HTTP यूजर को इंपोर्ट करेंगे, एंड HTTP यूजर, ताकि HTTP रिक्वेस्ट हम भेज पाए, एंड एक डेकोरेटर इंपोर्ट करेंगे टास्क करके. ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे अपना पहला एक क्लास लिखेंगे लोकस की, दैट इज गोना बी फर्स्ट लोकस करके. अब हम एक क्लास लिख देते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद में हम यहाँ पे HTTP यूजर को पास कर देंगे ताकि इसकी सारी चीजें इनहेरिट कर पाए. अब हम यहाँ पे टास्क डेकोरेटर यूज करेंगे, एंड अपना एक टास्क लिखेंगे. सो टास्क का नाम लिख देते हैं hello_world करके. ओके, इसमें हम सेल्फ पास करेंगे, एंड उसके बाद में इसके अंदर एक फंक्शन होता है self.client गेट करेंगे इस पर्टिकुलर राउट को. ठीक है, अब अपने लोकल सर्वर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं,
इसमें एक कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं एंड एक्टिवेट कर लेते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट को, एंड एक्टिवेट हो गया है cd खोल एंड cls एंड लोकस्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, लोकस्ट को। एंड ये जो हमारा सर्वर है ये 8089 पे हमें मिलता है, तो हम 8089 पोर्ट यहाँ पे खोल लेंगे, लोकस्ट 8089। ठीक है, अब ये हमसे पूछा कितने नंबर ऑफ यूजर्स आप भेजना चाहोगे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे। तो लेट सपोज अभी हम यहाँ पे 100 यूजर भेजते हैं एंड स्पॉन रेट सबका रहेगा लाइक 10। एंड यहाँ पे अब हमें होस्ट डालना पड़ेगा, क्या आपका होस्ट है। लाइक अगर आप कोई प्रोडक्शन सर्वर को टेस्ट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब अभी हम लोकल सर्वर पे टेस्ट करें तो हम ये लाइक होस्ट डाल देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्वैनिंग को। अब आप देख पा रहे हो कि 30 यूजर कंटिन्यूसली इस एपीआई पे जा रहे हैं एंड ये हमारे जैंगो सर्वर का हाल है ना, बिहाइंड द सीन ये हमारा जैंगो सर्वर है। तो अब आप देखोगे कि जो एवरेज आरपीएस निकल करके आ रहा है वो दैट इज अराउंड 6.2 है ना, इस तरीके का कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि हम पूरे डेटा को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आपको बहुत ही ज्यादा एक अच्छा लाइक एपीआई चाहिए एंड लाइक आप चाहते हो कि आरपीएस आपका रेस्पॉन्स पर सेकंड बहुत ही ज्यादा फास्ट निकल करके आए, देन यू कैन गो फॉर रेडिस विच इज लाइक अ कैशिंग लाइब्रेरी। यहाँ पे आप कैशिंग लाइब्रेरीज को भी यूज कर सकते हो ताकि लाइक जो ये पर्टिकुलर डेटा है वो कैश हो पाए। एंड अनदर वन थिंग इज लाइक आप यहाँ पे पैजिनेशन को यूज कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट होकर के आया, आपने ये एपीआई एग्जॉस्ट करी थी एंड आपने देखा कि लाइक बहुत सारे यूजर इस कंट्री वाली एपीआई को यूज कर रहे हैं। देन आपने सोचा यहाँ पे कि क्या लाइक हम इस पर्टिकुलर केस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन आप अपने सीनियर डेवलपर के पास जाए या फिर आपने खुद से कुछ गूगल रिसर्च किया, देन वो उसने आपको दो चीजें बताई। लेट सपोज अगर आपको पैजिनेशन नहीं यूज करना है देन यू कैन गो फॉर रेडिस विच इज वेरी गुड, बट उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं भी हैं, आपको सेटअप करना पड़ेगा। वही एक उसका कॉन्सिक्वेंसेज हुआ कि आपको रेडिस का अलग से सेटअप करना पड़ेगा, रेडिस CLI इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें होंगी। बट द बेस्ट थिंग इज यू कैन यूज पेजिनेशन। रेडिस भी आप यूज कर सकते हो एंड पेजिनेशन भी यूज कर सकते हो। रेडिस में आप पूरा डेटा कैश कर दोगे एंड जब भी वो एपीआई एंड पॉइंट हिट होगा एंड अगर कैश में डेटा पड़ा होगा तो वो ऑलरेडी रिटर्न कर देगा वहां पे। बट हम यहाँ पे पेजिनेशन यूज करेंगे एंड पेजिनेशन का फंक्शन मैंने ऑलरेडी लाइक लिख लिया है। ये एक पेजिनेट फंक्शन है जो 3 पैरामीटर लेगा, डेटा, पैजिनेटर, पेज नंबर, एंड इट्स गोना लाइक रिटर्न दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। पैजिनेशन, प्रीवियस पेजेस, ये आपको लाइक अगर आपको कोड चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पोस्ट द गिटहब लिंक एंड यू कैन डाउनलोड एंड सी द कोड। ओके, सो लेट्स अगेन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लाइक पेजिनेशन। ओके, सो अभी हम यहाँ पे सारे लाइक डेटा को रिटर्न कर रहे हैं। नाउ वी आर गोना यूज पेजिनेशन। सो पेज नंबर, डेटा, इस तरीके से हमने कुछ रिटर्न किया एंड डेट ऑफ रिजल्ट से निकल के आएगा एंड पेजिनेशन में हम यहाँ पे ये रिटर्न करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारा पूरा एपीआई बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम ये लोकस वाली फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम एक रैंडम वेरिएबल को भी बुला लेंगे, इंपोर्ट रैंडम। ओके, एंड लेट्स स्टॉप आवर सर्वर बिकॉज इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, सिस्टम में स्लो हो गया। आप देख पाओगे कई जगह पे कोड भी आपका बैंड बजा रही है क्योंकि इतनी ज्यादा लोग एग्जॉस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एपीआई को कि ये सर्वर कभी कभी एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहा है। कैन नॉट शेड्यूल न्यू फॉर्जर आफ्टर इंटरप्रेटर शट डाउन, क्योंकि बहुत हैवी एक एपीआई बन गई है, इतने ज्यादा यूजर है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप लोड टेस्टिंग नहीं करते हो तो क्या लाइक फ्लो हो सकते हैं आपकी एपीआईज के। ठीक है, एंड अगेन अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लाइक टास्क बनाया, उसके बाद हम यहाँ रैंडम इंपोर्ट किया एंड यहाँ पे हम पेज नंबर डालेंगे। तो पेज नंबर जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे लाइक एक रैंडम वेरिएबल जनरेट करेंगे, रैंडम डॉट रैंड इंट, एंड यहाँ पे हम 0 से लेकर के कह सकते हैं लाइक 1 से कह सकते हैं, कह करके 10 तक कुछ वेरिएबल जनरेट कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम पेज नंबर पास करेंगे। सो पेज नंबर इज गोना पेज, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग यूज कर लेंगे ताकि ये पेज यहाँ पे सेटअप हो पाए एंड ये पेज यहाँ पे आएगा। ये views.py में अगर आप जाओगे सो ये जो पेज नंबर था वो यहाँ पे आएगा। ओके, सो अब हम अगेन सर्वर को रन करते हैं एंड लेट्स सी what are the result. So before going further to the video, I have a very important information, like if you want to become a full stack engineer in just 6 months with minimum CTC of 5 lakh LPA,
मतलब अगर आपको एक फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है विद मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख, देन न्यूटन स्कूल इज जस्ट फॉर यू। सो न्यूटन स्कूल आखिर है क्या? सो न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक ट्रेनिंग दी जाती है विद मिनिमम गारंटीड प्लेसमेंट ऑफ 5 लाख। मतलब आपको यहाँ पे 5 लाख का तो मिनिमम प्लेसमेंट मिलना ही मिलना है। एंड न्यूटन स्कूल की जो कंपनीज हैं, जो न्यूटन स्कूल की हायरिंग कंपनीज हैं, वो बहुत अच्छी हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो थॉटवर्क, जोमैटो, गूगल, शाओमी, बाइजू एंड अकेडमी जैसी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो कि न्यूटन स्कूल के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। एंड इसीलिए न्यूटन स्कूल के जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच है। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसी चीजें मिलती हैं। एंड अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा अच्छा करियर चाहिए तो डेफिनेटली आप न्यूटन स्कूल के साथ जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कोई भी टेक बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए। आपने कोई भी ग्रेजुएट किया हो, वेदर आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, एंड आपको अगर टेक वर्ल्ड या फिर एक इंजीनियर बनना है, देन यू कैन एनरोल इन द न्यूटन स्कूल कोर्स। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेफिनेटली यू कैन चेक दैट आउट एंड आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आप फिलअप कर सकते हो एंड न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की आपको एक कॉल बैक आ जाएगी। सो लेट्स अगेन गो बैक टू द वीडियो। अब हम यहाँ पे अपने Django सर्वर को स्टार्ट करते हैं। पाइथन manage.py रन सर्वर एंड अपने लोकस्ट सर्वर को भी स्टार्ट करते हैं। सो LOCUST लोकस्ट, दोनों सर्वर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब जो डेटा आएगा वो हमारे पास में पैजिनेशन के साथ में आएगा। एंड जो पैजिनेशन का रेस्पॉन्स है वो आपको सबसे नीचे जाकर के मिल जाएगा, क्योंकि ये है। एंड अगर हम इसमें पेज 2 करके पास करेंगे तो हमें आगे का डेटा मिलेगा। पेज इज इक्वल टू 2 पास करेंगे तो हमें आगे का डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख भी पाओगे ये जो पेज है वो हमारे पास प्रीवियस पेज 1 है, इस तरीके का इंफॉर्मेशन है। तो अब हम लोकल सर्वर को अपने स्टार्ट करते हैं 8089 पोर्ट पे जो कि चल रहा होगा। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर अगेन हम यहाँ पे 100 डालते हैं एंड स्पॉन रेट दोनों का 10 रहेगा। एंड जो एंड पॉइंट रहेगा वो हम यहाँ पे ये डाल देते हैं। ठीक है, एंड हमने ऑलरेडी इसमें सेटअप कर दिया था कि हम रैंडमली एक 1 से लेकर के 10 तक नंबर जनरेट करेंगे एंड इसमें पेज नंबर में पैरामीटर पास कर देंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं स्पैनिंग को। एंड अब आप देख पाओगे जो Django का सर्वर है वो इस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे आप पूरा डेटा नहीं दे रहे हो तो आपका जो RPS निकल करके आ रहा है वो है 3, जो कि एक काफी पहले के मुकाबले काफी सही है। मतलब जो रिस्पॉन्स पर सेकेंड है वो आपका पिछली बार जो कि 8, 6 इस यहाँ तक जा रहा था वो अब सही हो रहा है। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप आगे भी इन चीजों में एडअप कर सकते हो कि आप यहाँ पे रेडिस लगा सकते हो एंड और भी माइनर जो चेंजेस हैं वो अपने API में कर सकते हो। एंड इसी चीज को आप लोड टेस्टिंग कर सकते हो एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन सा कोड कितने लेवल पे जाकर के फट रहा है एंड ये सारी चीजें हैं ताकि आप अपने कोड को और भी ज्यादा स्केलेबल एंड अच्छा बना पाओ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी और भी बहुत ही ज्यादा अच्छे कंटेंट को मैं पोस्ट करता रहूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को भी और लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस ऐसी इंफॉर्मेशन को देखें। ठीक है, सो एंड करते हैं हम इसी वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। तब तक के लिए थैंक यू।